Good morning students, I hope you all are fine. Standard 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स. So many properties in the whole numbers like associative property, commutative property, closure property. So let me see which one property will be applied on all numbers. Start with the closure property. The closure property is whole numbers are closed under addition and also under multiplication, which means आप होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी हियर, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on. So if I take any two numbers from whole numbers, for example 1 and 2, and if I apply the mathematical operation of addition on these two numbers, then we can get 3. Then 3 is also the member of whole number. So this property is called closure property. मैं होल नंबर के सेट में से कोई भी दो नंबर ले लूँ, उन दोनों नंबर का एडिशन करूँ, तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो आंसर होल नंबर के सेट का ही मिलेगा. ठीक है, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. उसी तरह let me take any other number like a 5 multiply with any numbers like a 12 is also the number of whole number. Okay, so we are multiply 5 multiply with 12, it becomes 60, and 60 it is also a member of whole number. So this operation also will be closure. So we can say that whole number are closed under addition एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन. मतलब इन दोनों में ये दोनों ऑपरेशन ऐसे है कि जिसका हम यूज़ करने से उसका जो आंसर मिलता है वो आंसर होल नंबर में से होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल लेट वी टेक 3 - 5. 3 है वो भी होल नंबर है, 5 है वो भी होल नंबर है. अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन लूँगा देन वी कैन गेट -2. वी कैन गेट -2, but answer -2 is not belong from whole number. whole number तो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं होते, इसीलिए ये सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट commutativity property for addition and multiplication. For example 3 plus 2 is equal to 2 plus 3. We can write that. Okay, commutativity property it means हम कोई भी नंबर्स को आगे पीछे करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 plus 2 is equal to 5 and 2 plus 3 is equal to also 5. So this commutativity is only apply on addition and multiplication. Second example is 5 multiply with 2. 5 2s are 10. We can also be write like a 2 multiply with 5. It is also be same. मतलब कोई भी नंबर को हम आगे पीछे कर सकते हैं. It's called commutativity property or commutative property. Associativity. What is the meaning of the associativity? Associativity it means if we have a more than two terms like 2 plus 3 plus 4. Okay, if I take addition of these two numbers, first 2 plus 3 5, then we can add the 4, or if 2 plus 3 plus 4, पहले हम इन दोनों का एडिशन करके बाद में ये नंबर ऐड करें, या पहले लास्ट दो डिजिट का नंबर एडिशन करके फर्स्ट वाला नंबर ऐड करें, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. इट्स कॉल्ड एसोसिएटिविटी. वही प्रॉपर्टी किसमें मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है. 2 multiply with 3 multiply with 5. यहाँ पे आप इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करके बाद में लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या
2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके पहले क्या कर सकते हो। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बताऊँ तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a एंड b आर एनी होल नंबर्स, और a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, where a and b are any whole numbers. Same here, नीचे लिख लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और a क्रॉस b क्रॉस c is equal to a cross b cross c, but first we take any two numbers or last two number. It is a standard form where a, b and c are all numbers. Distributivity of multiplication over addition. पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी इट मीन्स a क्रॉस b प्लस c, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी वाला टर्म हो और बाहर कोई मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म हो तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कैसे होती है? ये नंबर a b के साथ मल्टीप्लाई होगा a क्रॉस b एज इट इज साइन, और a क्रॉस c, ये जो a है पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बाद में c के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन वी कैन गेट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 7, ओके, तो यहाँ पे सिंपल भी कर सकते हैं हम, अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ 7, सो वी कैन गेट 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 5 ज़ा 35, इट बिकम 45। इस तरह से आइडेंटिटी फॉर एडिशन इज 0, इट मीन्स कि आप एडिशन के ऑपरेशन में कभी भी 0 ऐड करो तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 7 प्लस 0 इट बिकम 7, 8 प्लस 0 इट बिकम 8, 12 प्लस 0 इट बिकम 12। मतलब एडिशन के ऑपरेशन में 0 इज द आइडेंटिटी, ओके, और आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन इज 1। उसी तरह जैसे हम 0 कोई नंबर में ऐड करें तो आंसर अपना वही रहता है, सेम वे कोई भी नंबर के साथ हम 7 मल्टीप्लाई विथ 1 वी कैन गेट 7, 8 मल्टीप्लाई विथ 1 वी कैन गेट 8, 12 मल्टीप्लाई विथ 1 वी कैन गेट 12। अगर हम कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस वन इज द आइडेंटिटीज फॉर एडिशन and multiplication is 0 and 1. Which one is mind in your? So write down in your feedback. Let me start the exercise 1.2 after the understood the property of the whole number. So exercise 1.2 question number 1 is find the sum by suitable rearrangement. Rearrangement terms को करके हमें आंसर लाना है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 837 प्लस 208 प्लस 363, अब दोनों का वंश का प्लस देखो यहाँ पे तीनों में से 7 और 3 इट बिकम 10, मतलब राउंड ऑफ के नियर आता है। तो हम क्या करेंगे 837 प्लस 363 प्लस 208 कॉम्यूनेटिव प्रॉपर्टी, विच वन इज, यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की? कॉम्यूनेटिव प्रॉपर्टी, नंबर को आगे पीछे किया। अब मैं इन दोनों का एडिशन करूँगा, बाद में ये नंबर ऐड करूँगा, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। सो इट बिकम 7 प्लस 3 0 कैरी अप 1, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 कैरी अप 1, 8 प्लस 9, 9 प्लस 3 12, ओके, दिस इज द सम ऑफ 837 प्लस 363 plus 208. Now we can get the simple addition 8 0 0 0 2 plus 2 4 and 1. This is our answer. Let's see second one. अब देखो यहाँ पे अलग अलग 4 नंबर हमें दिए गए हैं,
तो फर्स्ट वी चेक द वंस प्लेस ऑफ द गिवन ऑल नंबर्स 2, 3, 8 and 7. अब देखो 2 and 8 इट बिकम 10. इट मीन्स इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमारा राउंड ऑफ वैल्यू में आएगा और बाद में इन दोनों का. सो वी रीअरेंज द गिवन नंबर्स 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647. So rearranging given numbers and addition with each other. So we can get 8 plus 2 10, carry up 1. 1 plus 6 7, 7 plus 3 10, carry up 1. 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, carry up 1. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3 is the sum of these two digits. Now 7 plus 3 it become a 10, carry up 1. 5 plus 1 6, 6 plus 4, 6 plus 4 10, carry up 1. 1 plus 4 5, 5 plus 6 11. Now you are in the 6th standard, okay? So you know very well how to get the sum of addition or subtraction. तो directly अब हम करेंगे. So now 0 0 0 0, so 0 plus 0 0 plus 0. Now 5 plus 1 6 and 3 plus 1 4. This is our answer. अब ये छोटे छोटे एडिशन आप डायरेक्टली कर लेना, ठीक है? हर बार ये सम करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. नाउ वी रीअरेंजिंग द गिवन टर्म्स. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात आई. अब देखो, now rearranging given terms like 6 to 5 multiply with 60, okay, multiply with 2 7 9. अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे. मल्टीप्लिकेशन साइड में दिखा रहा हूँ. 2 6 2 5 मल्टीप्लिकेशन विथ 60. 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज द 10th प्लेस, so we can put the 0. Now 6 2 5 as it is. 1 5 are 5, 1 2 are 2, 1 6 are 6. Now multiplication with the 1 place 6, 6 5 are 30, carry up 3, 6 2 are 12, 12 plus 3 50, carry up 1, 6 6 are 36 plus 1 37. So 0, 5 plus 5 10, carry up 1, 7 8 9 and 10, carry up 1, 6 7 8 9 or 10. It becomes 10,000. मल्टीप्लिकेशन विथ 2 7 9. अब 2 7 9 1 are 2 7 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 as it is. This is our answer. Now let's see it. First we multiply with 3 this 2 digit because of 6 5 are 30, so we can get the easily sum. So 2 8 5 as it is, 6 5 are 30 and 0 as it is. So now this given example is too easy right now. Let me check with simplification. 2 8 5 multiply with 3, 3 5 are 50, carry up 1, 8 3 are 24, 24 plus 1 25, carry up 2, 3 2 are 6 7 8 8. So it become a 8 5 5 and 2 0 as it is. This one is our answer. Or the second one is, or last one is, now 125 multiply with 8. ये 8 को मैंने आगे कर लिया. Multiply 40 multiply with 25. हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 125 2 जा 250. How many? 250. And 250 2 जा 500. Okay, and 500 2 जा 1000. तो यहाँ पे डायरेक्टली भी हमें मालूम पड़ जाएगा, और अगर डायरेक्टली मालूम ना पड़े तो 125 मल्टीप्लाई विथ 8 कर लेना. 8 5 जा 40, कैरी अप 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, कैरी अप 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 कितना आया
200. So 8 1 जा 8 प्लस 2 10, इट बिकम 1000. 2 मिनट पहले मैंने आपने जो बताया था वही है, ठीक है. तो इट बिकम 1000. मल्टीप्लाई विथ 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100 और 10 as it is. Now 1000 multiply with 1000, it become 1 1 जा 1 और 3 plus 3 6 0 behind 6 is our answer. अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चन नंबर 2 डी ई और एफ क्यों किया, ए बी सी क्यों नहीं किया. तो ए बी सी आप लोगों को होमवर्क में करना है, सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है. क्योंकि ये 3 एग्जाम्पल अगर आप ये बोर्ड में से देख के करोगे ना तो पहले 3 आपको सिंपली आ जाएंगे. सो ये समझ कर 2 बार देखना, फिर जो होमवर्क में जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी दिया है वो अपने आप योर सेल्फ, यू ट्राई योर सेल्फ, ओके. इतना करना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना है. 54279 मल्टीप्लाई विथ 92, सेम ईयर 54,279 मल्टीप्लाई विथ 8. अब इन दोनों के बीच में क्या है, एडिशन. तो करना क्या है, दोनों में से जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, जो कॉमन फैक्टर, उसको हम क्या लेंगे, बाहर निकाल देंगे. सो वी कैन गेट द कॉमन ऑफ फैक्टर बोथ ऑफ देम. सो 54279 दोनों में से कॉमन थे, निकाल दिए. मल्टीप्लिकेशन 92 प्लस 8, इट्स अ रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है पर कैसी, रिवर्स. जो एडिशन के रिलेशन में जब भी 2 टर्म्स हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों के रिलेशन में कोई टर्म्स हो और वो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हो, तो दोनों में जो कोई भी कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. सो नाउ 54,279 multiply with 92 plus 8, it become 100. Now given example is too easy. 54279 behind 20 is our answer. So in the next example you can see that this one is the first bracket, this one is the second bracket. अब दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म्स है. 81,265, 81,265. यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 169, मल्टीप्लाई विथ 69. दोनों में सेम कॉमन फैक्टर कौन सा है, 81,265. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. दोनों में से कॉमन निकाल दो. सो वी कैन पुट द कॉमन 81,265 multiply with 169 minus 69. It become 81,265 multiply with 169 minus 69. It become 100. Now 81265. Whenever we multiply any number with 100, we can put 20 behind of given numbers. So we can get the answer is 81,26,500. ठीक है. See it. This one is the little bit larger example. You can see that 3,845 multiply with 5 and multiply with 782. And here 769, here 782, here 769. So here no one any common factor. 25 plus 280. यहाँ पे सेम टू सेम कॉमन कुछ भी नहीं है इस एग्जाम्पल में. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा. लाइक 3845 multiply with 5 multiply with 782
plus in second bracket 7 6 9 मल्टीप्लाई. अब 25 का को फैक्टर क्या निकलेगा? 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 218. अब देखना 769 मल्टीप्लाई विथ 5 कीजिए. 769 मल्टीप्लाई विथ 5. 5 9 जा 45 कैरी अप 4. 5 6 जा 30 30 प्लस 4 34 कैरी अप 3. 7 5 जा 35 35 प्लस 3 38 3845 3845 हो गया. कॉमन फैक्टर दिखा. सो वी कैन गेट 3845 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 782 प्लस इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिला? 3845 multiply with 5 multiply with 218. Now you can easily see that in both bracket we have a two common factor. One is 3845 second one is 5 5. So we can take the common of both term. So 3845 multiply with 5 in the second bracket is 782 plus 218. Okay, so we can get the two operation here. 3845 multiply with 5. So let me take two examples, smaller example. 3845 multiply with 5 and 782 addition of 218. Let me check. 5 5s are 25 carry up 2. 5 4s are 20 plus 2 22 carry up 2. 5 8s are 40 plus 2 42 carry up 4. 5 3s are 15 plus 4 19. And here 8 plus 2 10 carry up 1. 8 plus 2 10 carry up 1. 7 plus 1 8 plus 2 10. So both product will be here. First one is 19225 multiply with 1000. Then answer will be 19225,000 is our answer. छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के सम है. So now question number 4 is find the product by suitable properties. Let's see it. देखो अब यहाँ पे this is also be a distributive property example. So here 738 multiply 100 को हम डिवाइड करेंगे 100 plus 3 is equal to 103. Now we are apply the distributive property. So 738 multiply with 100 plus 738 multiply with 3. This one is the 73800 plus 8 3s are 24 carry up 2. 3 3s are 9 plus 2 11 carry up 1. 3 7s are 21 plus 22. So addition of 0 plus 4 4 0 plus 1 1 8 plus 2 10 carry up 1. 3 plus 1 4 4 plus 2 6 7 as it is. This is our answer. Next one is 258 multiply with 1000 plus 8. It become a 8008. So now we are also apply the distributive property. So 258 multiply with the 1000 plus 258 multiply with the 8. This one is the 258000 plus 8 8 is a 64 carry up 6. 8 5 is a 40 40 plus 6 46 carry up 4. 8 2 is a 16 16 plus 4 20. So now we get the addition 0 plus 4 4
0 plus 6, 6, 0 plus 0, 0, 8 plus 2, 10, carry up 1, 5 plus 1, 6 and 2 as it is. This is our answer. जो मैं बोल रहा हूँ वो केयरफुली सुनना है और जो बोर्ड में लिख रहा हूँ वो कॉन्स्टेंटली देखना है और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 854 मल्टीप्लाई विद द 100 plus 2, 100 plus 2. So we can also be apply here distributive property. So this number is multiply with the 100 and this number will also multiply with the 2. So it become a 854 multiply with 100 plus 854 multiply with the 2. So 854 multiply with 1, it become 854 and 2 0 behind, plus 2 4s are 8, 5 2s are 10, carry up 1, 2 8s are 60 plus 70. Now addition of both term, 0 plus 8 8, 0 plus 0 0, 4 plus 7 11, carry up 1, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 8 as it is. This one is our final answer. And क्वेश्चन नंबर 4 का डी आपको होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। पूरा समझ लीजिए दोनों क्वेश्चन और अपनी बुक में अच्छे हैंड राइटिंग से लिख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 5, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन Monday. So petrol filled on Monday is equal to how many liters petrol filled on Monday? 40 liter. 40 liter. Okay. Petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liter of petrol. So next day petrol filled on next day is equal to 50 liter. So that total petrol filled is equal to 40 plus 50 is equal to 90 लीटर। अब दोनों दिनों मिला के उसने कितना पेट्रोल फिलअप कराया? मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल टैंक में डलवाया, दूसरे दिन उसने 50 लीटर पेट्रोल टैंक में डलवाया, तो टोटल दोनों दिन का मिला के उसने 90 लीटर पेट्रोल टैंक के अंदर डलवाया है। सो इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹45 पर लीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल के कितना कॉस्ट है? ₹44। देन हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू हाउ मच मनी? 45 rupees 45. Then cost of how much? 90 liter petrol is equal to 44 multiply with 90. So we can get the multiplication of 44 multiply with 9. Now 0 as it is. Now here 9 4s are 36. Carry up 3. 9 4s are 36 plus 3 39. Therefore he spent rupees 3,960 on पेट्रोल। समझ लीजिए, then write down in your book. So question number 6 is, a vendor supplies 32 liter of milk
to a hotel in the morning and 68 liters of milk in evening. So we will start with the example is supply of milk in morning is equal to how much? 32 liter, and supply of milk in evening is equal to 68 लीटर. ओके, मॉर्निंग को वो 32 लीटर मिल्क देता है और इवनिंग को 68 लीटर मिल्क वो होटल को प्रोवाइड करता है. देन टोटल मिल्क सप्लाई ऑफ मिल्क is equal to 32 plus 68, it become a 10. पूरे दिन का वो 100 लीटर्स मिल्क सप्लाई करता है. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, अब यहाँ तक बात खत्म हुई ऑफ मिल्क इन इवनिंग. इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर. ओके, अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क is equal to ₹45. Then cost of 100 liter milk is equal to 45 multiply with 100, it become 4500. So now we can say that therefore rupees rupees 4500 is due to the vendor per day. Okay, देख लीजिए, समझ लीजिए, देन राइट डाउन इन योर बुक. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सामने 3 ऑप्शन हो गए, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और कम्यूटेटिविटी. तो यहाँ पे ये जो पहला वाला है 425 मल्टीप्लाई विथ 136 इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई विथ 136 के पार्ट लगा दिए हैं, 6 + 30 + 100. तो इस तरह से कोई एग्जाम्पल हो तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? इट बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. हमने सीखी थी ना लेक्चर के स्टार्ट में कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. दूसरी बात, 2 मल्टीप्लाई विथ 49 मल्टीप्लाई विथ 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49. मतलब कोई नंबर हम आगे पीछे करें तो आंसर में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, वो देखने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे हम? मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड यहाँ पे भी वही है 80 + 2005 + 20, देन 80 + 20 + 2005. नंबर को आगे पीछे करो तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. कम्यूटिविटी ऑफ एडिशन. So
exercise 1.2 is completed here. Write down with your net handwriting. Okay.